Hello everyone and welcome to online lecture on data structure algorithm lecture series. I am Dr. Mangesh Joshi from Department of Mechanical Engineering. So today we are going to see the linked list. So you already know that a list, it is nothing but a sequence of numbers, right? So we have already seen the arrays, which is a sequence of numbers representing maybe 3, 5, 7 and so on. So we have already seen the arrays, right? So today we are going to see the linked list part. So let us see what is linked list. So what is linked list? Linked list is a way to store data. अभी मान के चलो this is a chain of people holding hands. You can see in the video, in the picture, that there is a group of people holding hands together. So it is similar to this arrangement. It is a chain of people holding hands. So here if we compare this arrangement with our programming, so here we will call node. Each person is representing one node, right? So you can see there is a person and they are holding hands together. So this is nothing but one node is forming link with the other node, right? So there is one node, other node, and there is a link between these two nodes. So similarly, you may have one other node, another node like this, right? So each person indicating a node has two things. अभी ये तो हो गया कि एक नोड होता है कुछ. अभी एक नोड जो है हम उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं एक नोड को, ठीक है. सो उसका पहला पार्ट होता है डेटा. यहाँ पर वो डेटा आएगा. इसके दूसरा पार्ट होता है दैट इज लिंक, ठीक है. तो पहले पार्ट में डेटा में इंफॉर्मेशन दे आर होल्डिंग लाइक नंबर और वर्ड, कैरेक्टर, फ्लोट नंबर और इंटीजर नंबर, एनीथिंग. द डेटा कैन रिप्रेजेंट age, CGPA, roll number, gender, etc. And the link part is nothing but a pointer to the next person in the chain. So this node number 1 knows that to which node it is connected. Similarly, node number 2 knows that to which node it is connected. So node number 1 is connected with node number 2, node number 3 is connected with node number 4, and so on. Like, so naming of the node can be anything. Maybe it's head node, intermediate nodes, last node or end node, etc. So यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि एक नोड में दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट में डेटा होता है और दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन होती है कि वो कनेक्टेड किस चीज से है, राइट. अनलाइक एन एरे वेयर डेटा इज stored साइड बाय साइड, इन अ लिंक लिस्ट डेटा इज scattered in memory and the link connects them in order. We will see this, what is the meaning of this statement in the next upcoming slides. So once again this is represented. So linked list is a linear data structure in which elements are stored at continuous locations. Rather, they are linked using pointers. So यहाँ पर हमको pointers लगने वाले हैं. So before going on to linked list, your concepts of pointer must be clear. Okay. So linked list forms a series of connected nodes where each node stores the data and address of the next node. अभी यही प्रोग्रामेटिकली कैसे किया हुआ है.
नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, राइट। डेटा एक पार्ट, नोड 1 का एक डेटा पार्ट है, एक लिंक पार्ट है। सो ये लिंक को पता है कि ये नोड 1 को मुझे किस दूसरे नोड को कनेक्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली नोड 2 के लिंक पार्ट को पता है कि मुझे नोड की कौन से नोड से कनेक्ट करना है, राइट। सो लिंक, जैसे नोड स्ट्रक्चर, a node is a linked list, typically consists of two components. We already seen data and next pointer or reference. So what it tells, it stores the memory address or reference of the next node in the sequence. So this is again will be covered in detail in upcoming slides, but for reference I will tell you that suppose the address, memory address of node 2 is for example 2000. So this link part will basically contains this 2000. That means node 1 will be connected to another node which is situated or located at memory address 2000. Similarly, if the address of node 3 is 3005 suppose, so this will contain 3005. That is the address of the next node, right? And if this node 3 is not connected with any other node, then last node will contain null or nil. So it will not give reference to any other next node because this is the last node in the link. That's why this will contain null. I hope 20% or 44% is clear. Let us deep in detail. So why linked list data structure is needed? Again, very important training and placement question, that linked list data structure क्यों use करते हैं? So हमेशा problem, we have already seen the programs of arrays जिसमें हमने अब suppose for example एक array है 10, 20, 30, 40 and so on, and you want to insert any number at say second position. So आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके राइट साइड में शिफ्ट करने पड़ रहे थे, राइट। या फिर वी हैव ऑलरेडी टेकन वन केस वेयर यू हैव डिलीटेड वन पर्टिकुलर एलिमेंट एंड आपने सारे एलिमेंट्स ऐसे फिर एक एक करके शिफ्ट किए थे लेफ्ट साइड में. So in arrays, handling the list is very difficult. That is, maintaining the list is very difficult, and hence the linked list is useful, right? So we will see how this is useful, but to overcome the drawbacks of arrays, we use this linked list. Again, this is very important concept. So coming back to again list, arrays and linked list. So we have already seen, suppose you create an integer array of 5 elements. So each integer element is of 4 bytes, right? So if you create array of 5 elements, so it will consume 20 bytes in total, right? So how this array will be stored? Suppose a of 0 element is stored in address 001, for example. This address is in the form of hexadecimal number, but for simplicity I am using it here 001. So the next element will be 004. Next element will start at 008 and so on, because each integer consists of 4 bytes. So it will go on like this. This should be 000. Okay. So in this manner, the arrays are stored in memory, continuous locations. But this is not the case. For example, if the first element of the array is stored in 001 memory location, 000, for example. So, and the second element can be stored in any other memory locations.
third element can be stored at some different locations. So आइडिया आ रहा है लिंक कैसे फॉर्म होगा. ये लिंक कनेक्ट होगी इससे, इसका एंडिंग नोड कनेक्ट होगा इसके साथ, इसका ये नोड कनेक्ट होगा इसके साथ. जैसे मान के चलो आपके पास में ग्राफ है, यू हैव अ ग्राफ राइट, और आपको कोई डिलीवरी करना है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, नागपुर से दिल्ली या फिर पूना ऐसा कुछ आपको ट्रांसफर करना है. सो नोड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नोड, और ये जो रास्ता है, डेस्टिनेशन है या फिर रोड है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक योर array, not array, is a pointer or address of the next node. Similarly ये नोड को पता है कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, similarly ये नोड को पता है इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, and this can be your destination likewise. So it is similar to that, but it is just mapping the memory location. Okay, so this is the basic of linked list. Now let us see कि difference क्या है एरे में और लिंक लिस्ट में. अभी तक के अपन ने छोटे डिफरेंसेस देखे हैं, बट इट इज अ डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट. सो डेफिनेशन वाइज, collection of elements stored in contiguous memory locations, collection of nodes connected by pointers. Okay, so you can read this. I'm not going to read each and every point. Okay, so you just go through it. Again we will take linked list in detailed manner. So suppose that there are three nodes, node 1, node 2, node 3, and I have already told you that each node contains two parts. One represents the data, other represents the link. The bottom represents the memory addresses of each node. So memory address for node 1 is 1001, memory address for node 2 is 2001, memory address for node 3 is 3001. So right now all these three nodes are independent, right? We have not joined them, we have not connected them. So now we have to establish the link between all these nodes. Okay, so data, as I already told you, that data could be anything: age, name, gender, CGPA. Link, it contains the address of the next node. Each node has its memory address होता है, सबका अपना अपना memory address होता है. अभी join कैसे करना वो भी बताया था मैंने. The link part will contain the address of the next node. So next node का address है 2001, जो कि वो link part में रहेगा. फिर node 2 में उसके next node का address रहेगा which is 3001. फिर node 3 में उसके next node का address रहेगा which is 8001. and since the node 4 is the last node, right, इसीलिए this is not connected with any other node and hence the end pointer is null. So जब भी लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम करेंगे, इस प्रोग्राम करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि लास्ट नोड जो रहेगा वो नल टाइप का होता है, उसका कोई एड्रेस वो होल्ड नहीं करता, इसलिए वो नल दिखाएगा. ठीक है. अभी तक के तो हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे थे नोड को. अभी एक्चुअल में देखना है कि ये नोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे विथ यूजिंग कोड. सो नोड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रीवियस videos, that is for programming, for problem solving. So a structure is a user defined data type that groups variables of different types together under a single name. जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था अपन ने, नेम कैरेक्टर टाइप का है, फिर CGPA फ्लोट टाइप का है, एज इंटीजर टाइप का है, सीरियल नंबर भी इंटीजर टाइप का है, एंड सो ऑन. सो यू कैन ग्रुप entire thing in a structure called student. ये हमने देखा है ऑलरेडी. ठीक है. So similar to that we will use a structure जिसका नाम हम रखेंगे node करके. You can keep any name, but in linked list you can use the standard terminology. So node करके नाम देंगे हम उसको. You can use capital N
ODE और स्मॉल NODE, इट डज नॉट मैटर। सो हमने ये रिप्रेजेंट किया है उसको डायग्रामेटिकली, डेटा एंड लिंक। तो यही रिप्रेजेंट कैसे होगा, स्ट्रक्चर करके यूज करना है जिसका नाम नोड रहेगा। तो स्ट्रक्ट नोड लिख लिया, करली ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमने इंटीजर करके कोई डेटा ले लिया है, वेरिएबल डेटा करके वेरिएबल लिया है अपन ने। यू कैन हैव एज, सीरियल नंबर और वॉट एवर वेरिएबल यू वॉन्ट, राइट। और सेकंड है लिंक पार्ट। सो लिंक पार्ट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर पॉइंटर। इट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर जो खुद को ही पॉइंट करता है। सो दैट इज स्ट्रक्ट नोड स्टार, पॉइंटर है इसलिए। इसका अपन ने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया हुआ है लिंक करके, जो अपन ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव नेम टू दिस पॉइंटर एज लेट्स से नेक्स्ट, ऐसा भी दे सकते हैं, इट इज अप टू यू। बट सिंस हमने स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज किया है डेटा एंड लिंक, तो इसीलिए हम इधर भी ऐसा ही लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये हो गया उसका पॉइंटर और ये हो गया उसका वेरिएबल का नाम। इस प्रकार हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड वी कैन डिराइव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स फ्रॉम दिस मेन स्ट्रक्चर, राइट। अभी ये देख लिया अपन ने हाउ टू रिप्रेजेंट अ नोड। अभी हम देखेंगे कि नोड बनाते कैसे हैं। जैसे आपने ये अभी स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्लाउड जो दिख रहा है यहाँ पर, वो एक स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कोड इसका। सो यू कैन डिराइव नोड 1, नोड 2, नोड n एक्सेट्रा। जैसे आप स्टूडेंट के इसमें करते थे, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया, तो स्टूडेंट 1 के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए, या फिर आप स्टूडेंट का एरे बनाते थे s of 60 करके, राइट। सो यू कैन डू सिमिलर टू द प्रीवियस केसेस, नोड 1, नोड 2, नोड n एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम नोड ग्राफिकली बनाते हैं। अब इसको देखना है कि प्रोग्रामिंग से कैसे बनता है। So how to create a node through code? So ये इसके लिए आपको एक एडिशनल लाइब्रेरी यूज करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, विच इज डिनोटेड एज stdlib, stdlib, जैसे भी प्रोनाउंस करना है कर लो। तो stdio को इंक्लूड कर दोगे, stdlib को .h को इंक्लूड कर दोगे, ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे इसके पहले बनाया था आपने स्ट्रक्चर। तो मैंने एक सीरियल नंबर करके वेरिएबल लिया हुआ है एग्जांपल के लिए, एंड स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक एज इट इज रखा है। अभी हमको जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाना है वो मेन में बनाना है, ठीक है। सो मेन में कैसे बनाओगे आप, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर लगेगा स्ट्रक्ट नोड, तो आपने ये हेड करके एक वेरिएबल दिया है। हेड का मतलब है स्टार्टिंग नोड जो भी रहेगा लिंक लिस्ट का, उसको हम बोलेंगे हेड। अभी ये हेड बनाने के बाद आपको उसको मेमोरी अलोकेट करना होता है। malloc stands for m stands for memory, alloc stands for allocation. So malloc function what it does, ये मेमोरी अलोकेट करता है हर एक नोड को। अभी कितनी मेमोरी अलोकेट करना है उसको, that depends on number of variables you are using here, right? हो सकता है किसी को CGPA होना है, किसी को और बहुत कुछ डेटा चाहिए। So that memory it is going to take, that will be decided on whatever variables you are using inside the structure, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, ये डायनामिक मेमोरी अलोकेशन होता है, रन टाइम पे अलोकेट होगी मेमोरी अलोकेशन। साइज ऑफ, तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा, आपको कितने उसका साइज है स्ट्रक्चर का वो देगा। इसके अंदर आपको लिखना है स्ट्रक्ट नोड जो आपने यहाँ पर बना के रखा है। तो इसका जो भी साइज होगा 16 बाइट का, 20 बाइट्स का, 30 बाइट्स का, वो ये रिटर्न करेगा साइज ऑफ फंक्शन। और ये जितना भी साइज होगा उसके हिसाब से ये हेड को मेमोरी अलोकेट करेगा नोड को। रिटर्न्स द एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जितना भी उसने अलोकेट कर दिया है दैट विल रिटर्न। तो ऐसे बनता है नया नोड। बट जब ये नोड आप बनाओगे तब ये रहता है खाली, राइट, एम्प्टी। अभी तक आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया है इसके वेरिएबल्स को। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वेरिएबल्स को वैल्यूज कैसे देते हैं। अभी तक के तो ये नल है, ठीक है, बन के रेडी है, बट वैल्यू नहीं है कोई।
तो हम देखेंगे हाउ टू असाइन वैल्यूज टू डेटा। ठीक है, अभी मैंने ये लिख लिया। अभी जब भी हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल पॉइंटर के साथ एक्सेस करते हैं तो इसके पहले आपने देखा था एस डॉट एज करके अपन असाइन करते थे, स्टूडेंट के केस में 10 करके। नाउ सिंस नाउ वी आर यूजिंग पॉइंटर्स, so this dot will be replaced with dash and greater than sign, right? तो इसको पढ़ते कैसे है, हेड एरो एस एन। ठीक है, एरो आप बोल सकते हो उसको, डैश और ग्रेटर देन बोलने से अच्छा। हेड एरो एस एन मीन्स हेड नोड का एस एन को वैल्यू असाइन करना है। कितनी वैल्यू असाइन करना है आपको, तो मेरे को इसको 01 सीरियल नंबर 1 ऐसा मुझे उसको वैल्यू असाइन कर लिया, इसलिए मैंने क्या लिखा, head arrow sn is equals to 01. So it will assign 01 to this variable sn. अभी इसको प्रिंट करना है, तो जैसे असाइन किया था वैसे ही प्रिंट करना है %d के साथ हेड एरो sn। ये जब करोगे तब sn इक्वल्स टू 01 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंटर लिंक को या एड्रेस को प्रिंट करना है तो यू यूज %p। तो वो पार्ट कैसा है, हेड एरो लिंक। अभी ये हेड का आपको एसएन करना था एक्सेस, तो आपने ऐसा लिख लिया हेड एरो एसएन। बट अगर लिंक पार्ट एक्सेस करना है आपको तो कैसा लिखोगे, हेड एरो लिंक, और इसको %p से प्रिंट करोगे। अभी ये इंडिविजुअल नोड बनाया है आपने, इसलिए वो नल दिखाएगा, बिकॉज अभी आपने उसमें कोई एड्रेस नहीं डाला है, राइट? सो इसीलिए दैट विल शो यू नल। इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड वन नोड and assigned a value to serial number only, and we have displayed the content of head node, that is serial number variable and link variable, right? So I hope this part is clear to you, how to create a node, because it is very important. अभी हम देखेंगे कि सेकंड नोड कैसे बनाते हैं। सो जैसे आपने फर्स्ट नोड अभी तक यहाँ पे बनाया था, राइट, you have already created this much part। अभी मैंने सेकंड नोड बनाया, सपोज मैं इसको टेल बोल रहा हूँ। ठीक है, दो ही नोड है, हेड और टेल फॉर एग्जांपल। तो स्ट्रक्ट जैसे मैंने हेड के लिए गया था, सेम चीज करना है, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेल, टेल इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और फिर टेल एरो एस एन इज इक्वल्स टू 2। तो अभी टेल एरो एसएन करोगे तो ये वाले इसको वो 2 असाइन कर देगा। ठीक है, और अभी डिस्प्ले करोगे तो आपको ये SN1 दिखेगा, ये पहले दिख गया, फिर SN2 दिखेगा टेल का, और ये नल दिखेगा। ये नल क्यों दिखेगा, बिकॉज अभी भी ये इंडिपेंडेंट नोड्स है। दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये एक्चुअली लिंक नहीं चाहिए यहाँ पर, दिस शुड बी नल। तो दोनों इंडिपेंडेंट नोड्स है, इसलिए ये दोनों में लिंक पार्ट को नल दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए पहले आपको दोनों नोड्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये पहले हेड नोड बनाया, उसको साइज एलोकेट कर दिया, फिर टेल नोड बनाया, उसको भी साइज दे दिया। अभी मुझे हेड के लिंक पार्ट में वैल्यू असाइन करना है। इसके पहले अपन ने देखा है कि सीरियल नंबर को अपन ने वैल्यू कैसे दिया था। अभी हमको हेड के लिंक पार्ट को देना है, तो कैसा लिखोगे, हेड एरो लिंक पार्ट, लिंक। ये वेरिएबल याद रखना, यहां पर लिंक है इसलिए यहां पर लिंक है। हेड एरो लिंक इज इक्वल टू हेड एरो लिंक इज इक्वल टू टेल। ऐसा अगर लिख दोगे तो इसका जो एड्रेस है बाय डिफॉल्ट ये लिंक पार्ट में आ जाएगा। इट इज जस्ट शोन हियर diagrammatically. This address could be in the form of hexadecimal number, right, containing characters as well as numbers. So ऐसा लिख दोगे
तो वो इसका एड्रेस इसमें ऑटोमेटिकली वो डाल देगा। ठीक है, अभी आपको वैल्यू देना है सपोज, तो हेड एरो एस एन इज इक्वल टू 01 लिख दिया, फिर टेल एरो एस एन इज इक्वल टू 02 लिख दिया, राइट, और दोनों को आपने प्रिंट कर लिया। सो प्रिंट सिर्फ आपने इतना ही किया है, हेड एरो लिंक। तो अभी आप देखोगे तो पहले जो नल दिखा रहा था अभी वो 8001 दिखाएगा। ठीक है, और टेल लिंक का प्रिंट करोगे तो नल ही दिखाएगा, बिकॉज अभी आपने इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो दिस लिंक इज नॉट देयर, इट शुड बी नल। ठीक है, so since this is not connected with any other node, that's why this is null and this will contain the address of the tail node. ठीक है, I hope you have understood how to connect two nodes. So अभी have you ever wonder that what will be the output of head arrow link? ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेड एरो लिंक। तो हेड एरो लिंक यानी क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इफ यू सॉल्व दिस हेड एरो लिंक, तो हेड एरो लिंक का वैल्यू क्या है 8001, और आपने अगर ऐसा लिखा एरो लिंक, सो इसका मतलब है दिस विल गो टू दिस 8000 एड्रेस एंड देन यहां पर का वो लिंक पार्ट को एक्सेस करेगा जो कि नल है। सो जरूरी नहीं कि आपको टेल एरो लिंक ही लिखना है, you can access the link part of tail node using the starting node of the linked list also. हिंदी में एक बार बताऊंगा, आप कोई भी लिंक्ड लिस्ट में जितने भी नोड्स है 1 2 3 4, तो आप सारे के सारे नोड्स का लिंक पार्ट पहले नोड से एक्सेस कर सकते हो, राइट। You need not to take name of that particular node every time. ये एक बार रन करके आप देखना, ऑनलाइन कंपाइलर या आपके पास सी कंपाइलर होगा तो। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज हेड लिंक एक्सेसेस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, हेड एरो लिंक गिव्स द कंटेंट ऑफ द लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, यानी ये पार्ट का कंटेंट एक्सेस करता है वो, और वो ऐसा करोगे तो ये भी नल दिखाएगा बिकॉज इट इज द सेम नोड, और ये तो ऑलरेडी नल है ही, राइट। सो इसी को अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, हेड एरो लिंक इज नथिंग बट टेल एरो लिंक, ऐसा। ठीक है, अभी हाउ टू क्रिएट एंड कनेक्ट मेनी नोड्स, अभी आपने 2 तो किया। ठीक है, सिमिलरली यू कैन क्रिएट 10 नंबर ऑफ नोड्स, 100 नंबर ऑफ नोड्स। अगेन सेम चीज करना है आपको जो आपने यहाँ पर किया हुआ है, इतना पार्ट आपको रिपीट 100 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 100 नोड बना पाओगे, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग। कोड की रिडंडेंसी जो होती है वो प्रोग्रामर हमेशा अवॉइड करता है। ठीक है, सो टू अवॉइड कोड रिडंडेंसी रिपीटेशन, we will create a function which creates and allocates memory to it. So हम ये जो रिपीटेटिव, इसके पहले भी अपन ने किया है बहुत सारा, इसमें रिपीटेटिव चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं बाय पासिंग एरेज थ्रू फंक्शन, आपने देखा हुआ है। सो ऐसे ही हम अभी ये चीज़ में स्ट्रक्चर को पास करेंगे टू क्रिएट नोड्स एज मेनी यू वांट विदाउट हैविंग कोड रिडंडेंसी, राइट। ये अभी ये लेक्चर का पार्ट नहीं है, अभी के लिए सिर्फ ये लेक्चर में बेसिक ही है। सो दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन दिस लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दैट एग्जाम, बट यू शुड नो कि कितने भी नोड्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हमको देखना है कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं।
ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अभी जैसे एरेज पे ऑपरेशन हमने देखा हुआ है, यू कैन इंसर्ट एनी एलिमेंट, you can delete any element from array, you can search through array, right? So similarly these operations can be performed on linked list in much easier way. So adding a new node to a linked list involves adjusting the pointers of the existing nodes to maintain the proper sequence. Insertion can be performed at the beginning, end or any position. So हमको करना क्या है बेसिकली, अगर मान के चलो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, इसके बीच में आपको, ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, इसके बीच में आपको सपोज और एक नोड को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो एड्रेस है ये वाले सेकंड नोड का, वो डालना पड़ेगा इसके लिंक पार्ट में, और सेकंड नोड जो नया नोड है उसका, उसमें क्या डालना पड़ेगा, इसका जो लिंक, थर्ड नोड का जो एड्रेस है वो आपको इसके लिंक पार्ट में डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों नोड ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी आपको, द लिस्ट विल रिमेन एज इट इज। जस्ट आप एक साइकिल की चेन इमेजिन करो, एक पार्ट निकाल लिया या फिर ऐड कर दिया लाइक वाइज, राइट। सिमिलरली डिलीशन करना है तो क्या करना है, डिलीशन करना है तो सपोज एक नोड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली आपको इसका जो एड्रेस है वो ये वाले नोड के लिंक पार्ट में डाल देना है, राइट। सो वो बीच वाला हट जाएगा, ठीक है। इन सर्चिंग का वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि सर्च कैसे करते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर ढूंढना है आपको, ठीक है। हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अभी तक अपन जितने भी देख रहे थे वो सब थे सिंगली लिंक्ड, आपने देखा था कि हर नोड सिर्फ सिंगल कनेक्टेड था ऐसा, तो ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स करता है, रिवर्स उसको आना पॉसिबल नहीं है। पॉइंटर्स अरिथमेटिक वी कैन नॉट यूज हियर फॉर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। It is the simplest type of linked list in which every node contains some data and a pointer to the next node of the same data type. इन्हें structure का data type same है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अभी डबली क्या होता है, so doubly linked list or two-way linked list is a more complex type of linked list that contains a pointer to next as well as previous node in the sequence. अभी ये तीन पार्ट का बना रहेगा डबली लिंक लिस्ट। आपने पहला वाला देखा है कि दो ही पार्ट में था, अभी नोड कैसा रहेगा, तीन पार्ट में रहेगा। बीच वाले पार्ट मान के चलो डेटा है, ठीक है, ये वाला पार्ट में नेक्स्ट का एड्रेस है, और ये अगर पहला नोड है तो नल रहेगा, अगर बीच वाला नोड है तो ये प्रीवियस नोड का एड्रेस लेगा। In this way, a node is connected through two links, right? So it is called as doubly linked list. और एक होता है circular linked list. It is just a single linked list, but इसका जो ending node single linked list का null था, वो null ना रखते हुए it is again connected to starting node. Right, so circular linked list is a type of linked list in which last node's next pointer points back to the first node of the list, creating a circular structure. This design allows for continuous traversal of the list as there is no null to end the list. Right, अभी ये linked list के application क्या है, क्या हो सकते हैं, just to imagine a WhatsApp chat. One message is connected to another message, right? ये एक नोड हो गया मैसेज आने, ये एक नोड हो गया मैसेज आने, जो सिर्फ टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ये एक आपने उस पर रिप्लाई कर दिया तो ये मैसेज इससे कनेक्ट हो गया, इसके बाजू में और कुछ आपने मैसेज लिखे, इन दिस वे दिस इज कनेक्टेड। बट ये बस आपको वर्टिकल फॉर्म में
You can delete any of the message. You can append the message, right? So this is the basic application of linked list, and there are n number of applications of linked list which you go through website that and learn what are the different applications of this concept, right? So I hope you have understood this linked list part, which is very important in data structure and algorithm lecture series. So thank you for watching this video. I hope you have understood each and every part of this lecture. If you have any queries, you can comment or email. The email ID is untwistedlearning@gmail.com.